Hello and welcome to the channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail, an online learning platform for complete SSB guidance and current affairs. So in today's video, we're going to talk about a very important topic of psychology test, that is how to deal with blank slide in TAT test of SSB. All of us are aware in TAT 12 pictures will be shown, one of them would be blank, and इस blank slide को लेके बहुत सारे aspiring candidates के दिमाग में बहुत सारे myths होते हैं. तो we are going to clarify all those myths. Also we are going to see what is the correct strategy to prepare for the blank slide. Let's get started. So in TAT test we are aware 12 pictures are there. Last picture जो आपका होगा वो एक blank slide होगा. आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं to observe and 4 minutes to write. Now ये जो 11 pictures होते हैं ये एक mixture of slides होते हैं, जिसमें आके कुछ happy, कुछ sad, कुछ stressful slide, कुछ social slide, कुछ dynamic one, कुछ neutral होंगे, and last वाला जो slide होगा वो एक blank होगा. Now let us see all these kind of slides through examples. Now here is a picture which is a very emotional picture. You can make out from the background also that this is a very sad scenario where a woman is probably crying and a man is consoling her. Next, here is a very happy picture. All the characters that you see are smiling. So आपकी जो story होगी कहीं ना कहीं इस reaction पे depend करेगी कि आपके जो सारे characters हैं वो smile कर रहे हैं. Next is here is a example of maybe neutral picture. A candidate is just sitting and thinking about something. तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हो. Next, here is a picture where all the characters are in action. They are doing something. Probably camp पे आए हुए हैं ये लोग. So this is a example of dynamic slide. Next one. This is an example of a social slide where few characters are interacting with each other. Probably this is a village scenario. Accordingly you can make your story. Next is a picture which is not happy but kind of a stressful situation because एक इंसान ने दूसरे इंसान को पकड़ा हुआ है, is probably trying to hit him, and there's another character पीछे से जो देख रहा है and he looks little shocked. तो ये थोड़ा सा stress induce यहाँ पे हो रहा है कि why this person is hitting this man. We saw various kind of slides and इस slide को देख के हम कुछ steps follow करते हैं. As mentioned in my previous video, आपने background को scan करना है, foreground को scan करना है, then you have to identify the hero. आपने एक relationship establish करनी है characters के बीच में, फिर एक theme decide करनी है, then you write the story. तो ये तो बात हो गई शुरू के 11 pictures की. अब हम बात करेंगे blank slide जहाँ पे कोई background नहीं है, कोई foreground नहीं है, कोई आपको कैरेक्टर्स नहीं दिख रहे हैं. तो नाउ ये स्टोरी आपने कैसे लिखना है. सो ये जो पर्टिकुलर ब्लैंक स्लाइड में स्टोरी लिखने वाला पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है. इसको फालतू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है कैंडिडेट्स ने, मे बी बिकॉज ए लॉट ऑफ मटीरियल इज प्रेजेंट ऑनलाइन. बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैंक स्लाइड के बारे में बता रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ गया है. वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई ऑल द मिथ्स दैट द कैंडिडेट्स हैव डेवलप्ड. सेकेंड थिंग, एक बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है व्हेन यू गो फॉर योर साइकोलॉजी टेस्ट. साइकोलॉजिस्ट एक ही बात बोलते हैं ब्लैंक स्लाइड के लिए स्पेशली, आपने अपने इमेजिनेशन पावर से यूज़ करके आप जो मन चाहे वो लिख सकते हैं. यू आर फ्री टू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट. तो ये एक लाइन आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इस टेस्ट में स्टोरीज लिखना और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. नाउ लेट अस सी व्हाई ए ब्लैंक स्लाइड. फर्स्ट थिंग, शुरू के जो 11 पिक्चर्स थे वहाँ पे एक स्टिमुलाई के फॉर्म में एक एक पिक्चर आ रही थी एंड यू वर रिस्पॉन्डिंग टू देम. एंड एज डिस्कस्ड इन माई TAT वीडियो, जो भी रिस्पॉन्सेस आप दे रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, यानी कि आपको भी नहीं पता है कि आप ऐसा रिएक्ट करेंगे. आप कितना भी चाहें आप अपनी वीकनेसेस को नहीं छुपा सकते हैं. इन सम फॉर्म और अदर TAT, WAT, SRT, कहीं इंटरव्यू में कहीं पे भी आपकी वीकनेसेस निकल के आ ही जाएंगी. इफ़ यू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द TAT एनालिसिस, ये सीता हिमांशु की स्टोरी में हमने देखा था कि सबकॉन्शियस माइंड से ये रिस्पॉन्स आया सीता और हिमांशु का कि हिमांशु इज़ नॉट ओबीडियंट एंड सीता इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल. अब आपको लगता है अगर हिमांशु कॉन्शियस माइंड से ये रिएक्शन देता तो क्या वो कभी भी ये बताना चाहता कि ही इज़ नॉट ओबीडियंट? क्या कभी भी वो ये बताना चाहता कि ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट? तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि आपके जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं शुरू के 11 पिक्चर्स में वो सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं.
जो 12th पिक्चर में आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, यानी कि यू आर अवेयर ऑफ वॉट एवर यू आर राइटिंग। एंड अगेन ये एक जर्नी है फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड टू द कॉन्शियस माइंड। 11 पिक्चर्स में आप सबकॉन्शियस से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अब ये एक काइंड ऑफ ए ब्रेक है, क्योंकि WAT में जब वर्ड्स आने वाले हैं नाउ आप थोड़ा और कॉन्शियस हो चुके हैं, SRT में आएंगे और थोड़ा कॉन्शियस हो चुके हैं, और SD तक तो आप पूरे कॉन्शियस हो चुके हैं, और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप एक परफेक्ट SD लिखें और सारी अपनी क्वालिटीज़ दिखाएं ताकि साइकोलॉजिस्ट इंप्रेस हो जाए। बट व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड इज कि TAT में जो शुरू के 11-12 पिक्चर्स हमने देखी हैं उनमें हमारी क्वालिटीज़ ऑलरेडी निकल के आ चुकी हैं। इसीलिए TAT को सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी माना जाता है, बिकॉज most of the responses that are coming are from your subconscious mind। स्लाइड आपको दी जा रही है, ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना एक बेटर इमेजिनेशन यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बाई चांस आप शुरू के 11 वाली स्टोरीज में आप नहीं शो कर पाए, तो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो all those qualities of yours। So let us see what are the popular myths। First myth that I have heard from candidates is सारा जो आपका साइकोलॉजी टेस्ट है, सारी जो आपको TAT में पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड आपने जो रिस्पॉन्स देना है वो ऐसे देना है कि आप अपनी एक लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं। एंड एग्जाम्पल भी देते हैं कि मैम ऐसे बताया कि फर्स्ट पिक्चर में आप ऐसे लिख दो कि एक स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग कैंडिडेट है, मेहनत करता है, देन ही गेट्स ए जॉब। सेकंड पिक्चर में बताओ कि जॉब मिल गया, एंड देन थर्ड में बताओ दैट ही इज़ डन समथिंग फॉर द सोसाइटी, फोर्थ में ही गेट्स मैरिड, फिफ्थ में ही टेक्स केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, देन ही प्लान हिज रिटायरमेंट, एंड देन रिटायरमेंट के बाद क्या करता है, सोसाइटी के लिए क्या करता है। बट अगर आप इतने कॉम्प्लेक्सिटी में घुस जाएंगे देन दिस टेस्ट वुड बी रियली रियली हार्ड फॉर यू। इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं वो सिंपली आप फॉलो करिए, एंड इंस्ट्रक्शंस आर वेरी लाउड एंड क्लियर। आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए, कैरेक्टर्स को देखिए क्या कर रहे हैं, इमेजिन योर सेल्फ फिजिकली मेंटली प्रेजेंट देयर, एंड देन रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। सो प्लीज़ डोंट बी अंडर दिस मिथ कि सारी पिक्चर्स को मुझे कनेक्ट करके फिर एक अपनी एक लाइफ स्टोरी लिखनी है। नेक्स्ट मिथ ये है, बोला जाता है कि हमेशा आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, हर एक स्टोरी में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दो और हीरो को बोलो फिर कि वो अपने ब्रेवरी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हर बार अपनी क्वालिटी शो करने के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए भी आप अपनी स्टोरीज़ को अच्छा बना सकते हैं। इफ़ देर इज़ ए हैप्पी पिक्चर, ऑल द कैरेक्टर्स आर स्माइलिंग, तो आप क्यों इमेजिन करोगे कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है। इफ़ देर इज़ ए न्यूट्रल पिक्चर, ए पर्सन इज जस्ट सिटिंग, एक बंदा सिर्फ बैठा हुआ है, तो आप ये क्यों इमेजिन करोगे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फायर आ गया, बांध टूट गया, फ्लड आ गया। नो, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ दैट। प्लीज़ थिंक लॉजिकली। नेक्स्ट मिथ दैट आई हैव हर्ड इज कि आप अपनी ब्लैंक स्टोरी को जो 11th पिक्चर में आपको दिखाया गया है उससे कनेक्ट कर दो। नाउ अगेन दिस इज अगेन ए मिथ। आप ऐसा क्यों करेंगे? आपको अलग अलग स्लाइड्स, हैप्पी स्लाइड, सैड स्लाइड, स्ट्रेसफुल स्लाइड दिखाई इसलिए जाती है ताकि वो टेस्ट करें कि आप कैसे अपने इमोशंस को जल्दी से स्विच कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो पॉइंट। कोई भी इमेजेस आप आपस में कनेक्टेड नहीं है, और अगर हैं भी तो भी आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। पिक्चर है, ऑब्जर्व दैट, आपका जो भी रिएक्शन है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, मेक ए स्टोरी ऑन दैट विथ फुल ऑफ एक्शंस। सो प्लीज डोंट बी अंडर एनी ऑफ द मिथ, फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड देन रिस्पॉन्ड। नाउ लेट अस सी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ब्लैंक स्टोरी में नहीं लिखने हैं। फर्स्ट थिंग यू टू रिमेंबर इज प्लीज डू नॉट मेक सेल्फ सेंटर्ड स्टोरीज। सेल्फ सेंटर्ड स्टोरीज़ का ये मतलब है जो स्टोरीज़ आपके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, आपकी स्ट्रगल्स को शो करती हैं। जो रिपीटर्स होते हैं नॉर्मली, दे हैव दिस टेंडेंसी
कि वो अपनी जो लाइफ स्ट्रगल है, जैसे कि कितनी बार वो रिटर्न एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, देन मे बी दे गॉट स्क्रीन आउट, देन दे गॉट कॉन्फ्रेंस आउट एंड फाइनली मैं रेकमेंड हो गया, ऐसी स्टोरीज वो अपनी ब्लैंक स्टोरी में लिखते हैं. नाउ एक चीज़ यहाँ पे समझिए, आप कितनी बार स्क्रीन आउट हुए हैं, कितनी बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर इन योर PIQ, राइट. एंड ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो आपको ज़रूरी बतानी है साइकोलॉजिस्ट को, राइट. नाउ यू आर वेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटी. आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप अपनी पॉजिटिव क्वालिटी शो करो थ्रू योर इमेजिनेशन पावर. यू आर फ्री टू इमेजिन वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड आप एक ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं जो ऑलरेडी आपके PIQ में बहुत ही क्लियरली मैंशनड है. So avoid self-centered stories. Second thing is avoid creating a problem in the story, especially in the blank slide, your neutral slides or your happy slide. इन तीनों टाइप की जो स्लाइड्स होती हैं और डायनेमिक स्लाइड्स टू, आप एक प्रॉब्लम क्रिएट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. क्योंकि आप अगर अपनी इमेजिनेशन में प्रॉब्लम से इमेजिन कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जब आपको WAT में पूछा जाता है कि आप लाइफ पे एक सेंटेंस बनाइए, तब आप क्या लिखते हैं? यू राइट लाइफ इज फुल ऑफ जॉय. बट सेम थिंग जब आपको घुमा के TAT में पूछी लाइफ इज ऑल अबाउट, तो आपने कहा प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप तो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे. व्हेन यू वर गिवन एन ऑप्शन टू इमेजिन, जब आपके पास ऑप्शन था टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, टू क्रिएट समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, to impact the masses, to help the masses, to create a positive impact on people around you, to do something. ऐसा कुछ करो जिससे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपकी सोसाइटी आपके ऊपर प्राउड फील करे. बट आपने क्या किया? आपने एक प्रॉब्लम इमेजिन कर ली. फायर आ गया, फ्लड हो गया, या फिर रेप हो गया, मर्डर हो गया, किसी को चोट लग गई. सो प्लीज अवॉइड ऑल दिस थिंग्स. Next, we have already discussed, do not try to link with what you have written in your 11 stories. Now, another thing is, आपने ये मेक श्योर करना है कि आप कोई भी थीम को रिपीट नहीं कर रहे हैं. आपने 11 पिक्चर्स में अगर कोई थीम बना दी है, से फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स डे का जो प्लानिंग है उसके ऊपर आपने एक स्टोरी बना दी है कि आपने स्पोर्ट्स डे पूरा ऑर्गेनाइज किया, तो प्लीज़ डू नॉट रिपीट दिस पर्टिकुलर थीम इन योर ब्लैंक स्टोरी. बिकॉज अगेन, अगर आप अपनी थीम्स को रिपीट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है यू हैव लैक ऑफ इमेजिनेशन. आप यहाँ पे अपने जो 11 स्टोरीज में लिखा है उसके अलावा कुछ इमेजिन ही नहीं कर पा रहे. सो अवॉइड डूइंग दैट. नाउ लेट अस सी कि हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम ब्लैंक स्टोरी लिख रहे हैं. फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई दिस कि साइकोलॉजी टेस्ट में कुछ भी गलत या सही नहीं होता. इट्स ओनली ए डिफरेंस ऑफ योर परसेप्शन, एंड वॉट एवर थिंग्स आई एम शेयरिंग नाउ, these are my personal opinions. okay, first thing, एक प्रिवलेंट मिथ है कैंडिडेट्स के दिमाग में कि हमने स्टीरियोटाइप स्टोरीज नहीं लिखनी है. यानी कि ब्लैंक स्टोरी में कभी भी ऐसी स्टोरी नहीं लिखनी है कि आर्मी ज्वाइन कर लिया, एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, नेवी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं. बट माई व्यू ओवर हियर इज लिटिल डिफरेंट. आई फील कि एक ऐसा कैंडिडेट जो बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, ही हैज़ ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ इट, ही हैज़ ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए फाइटर पायलट, देन डेफिनेटली जब उसको मौका दिया जाएगा कि यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, तो उस टाइम पे he would obviously want to write about army, he would obviously want to write about how he became a fighter pilot. Okay, so I believe there is nothing wrong in writing army, air force, navy stories. But one thing you should remember over here is कि आपने सिर्फ स्टोरी में ये नहीं लिख देना है कि SSB क्लियर किया, कैसे किया, एंड देन फाइनली ही बिकेम फाइटर पायलट. आपने उसके बियॉन्ड जाना है कि फाइटर पायलट बनने के बाद क्या किया, आर्मी ज्वाइन करने के बाद क्या किया, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था. वहाँ पे आप अपना इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आइए एंड देन चूज़ ए बेटर थीम टू राइट दैट. नेक्स्ट थिंग, आपने अपनी जो थीम चूज़ करनी है ब्लैंक स्टोरी के लिए, वो आप बहुत ही सिंपल चूज़ करिए. अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आप आइडिया उठा सकते हैं, बट उस आइडिया को थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी. अपना इमेजिनेशन पावर यूज़ करिए कि ऐसी कौन सी थीम्स हो सकती हैं जहाँ पे जो हीरो है उस पर सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं. ही हैज़ इम्पैक्टेड मासेस पॉजिटिवली, ही हैज़ मेड हिज पेरेंट्स, हिज टीचर्स, हिज फ्रेंड्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. ऐसा कुछ इनोवेटिव आइडिया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है,
तो आपने बहुत ही सिंपल थीम चूज करनी है फॉर द ब्लैंक स्टोरी. नेक्स्ट पॉइंट इज, आपकी जो ब्लैंक पिक्चर है दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो द क्वालिटीज दैट यू हैव. प्लीज रिमेंबर, आप में जो क्वालिटीज नहीं है वो अगर आप ब्लैंक स्टोरी में समहाउ शो भी कर देंगे तो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि जो शुरू के जो 11 पिक्चर्स हैं उसमें जो आपने रिस्पॉन्स दिया है उससे ऑलरेडी आपकी क्वालिटीज निकल के आ चुकी हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ये जो TAT एनालिसिस में हमने स्टोरी लिया था सीता और हिमांशु का स्टोरी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हिमांशु इज ए पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. अब वो अगर अपनी ब्लैंक पिक्चर में ये भी लिख दे कि हाउ ही इज ए सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, अपने आप से सारी चीज़ें करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये मैच नहीं होंगी. प्लीज़ रिमेंबर, आपने ब्लैंक स्टोरी ठीक करने से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, आपने अपने पहले इनेट क्वालिटीज़ पे ध्यान देना है. सेकेंड थिंग, हमने अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया. नाउ ये जो ब्लैंक पिक्चर है इसमें आप ऐसी क्वालिटी शो कर सकते हो जो आप शायद शुरू के 11 स्टोरीज में नहीं शो कर पाए. आप ऐसी कोई थीम चूज कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके PIQ से रिलेट करती हो, कहीं ना कहीं आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन से मैच करती हो. ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग स्टोरीज, प्लीज़ रिमेंबर कि आपने जो स्टोरीज लिखनी है फुल ऑफ एक्शन से लिखनी है. जो मैंने आपको मेथड बताया था, रूल बताया था 1 2 6 2, फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन, सेकेंड लाइन आपने सिचुएशन बतानी है, क्या सिचुएशन है, देन 6 लाइन्स ऑफ एक्शन. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस सी हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट कि ब्लैंक स्टोरी में अच्छी स्टोरीज हम कैसे लिखें. So to this my answer would be your preparation for self description would help you here. Yes, सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो आपने तैयारी करी है वो तैयारी आपको TAT में कैसे हेल्प करने वाली है. वहाँ पे एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर सेल्फ ओपिनियन, जिसमें आपको नॉर्मली अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी होती है. नाउ माय सजेशन वुड बी, आपने जो स्ट्रेंथ्स लिखी हैं वहाँ पे दोज आर योर टॉप स्ट्रेंथ्स दैट यू बिलीव कि मेरे में ये स्ट्रेंथ्स हैं. ओके, नाउ जब आपने ये डिसाइड किया कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है तो आपने उसके पीछे कुछ रीजनिंग दी होगी, आपने कोई इंसिडेंट सोचे होंगे जिनके हिसाब से आप ये बिलीव करते हैं कि आप में ये पर्टिकुलर क्वालिटी है. तो आपने एक डिटेल्ड अपनी लाइफ का एनालिसिस किया होगा, इंसिडेंट्स के बारे में सोचा होगा, कैसे आपने रिस्पॉन्ड किया है उन इंसिडेंट में उनके बारे में सोचा होगा. एंड दोज आर द इंसिडेंट जिसमें आपने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं. तो उन्हीं इंसिडेंट्स को आपने फिर से यहाँ पे ब्लैंक स्टोरी के लिए सोचना है. ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस जिनमें आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है, समथिंग विच यू आर वेरी प्राउड ऑफ. थिंक ऑफ दोज थीम्स. आपको कम से कम 5 से 10 थीम तो आराम से वहाँ से मिल जाएंगी जो आपकी क्वालिटीज़ को शो करते हैं. नाउ उन थीम को लिखने के बाद नाउ इमेजिन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, देन राइट ए स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ एक्शन, जहाँ पे आपने डायरेक्टली OLQs को मेंशन नहीं करना है, कोई एडजेक्टिव्स नहीं यूज़ करना है. पास्ट टेंस में आपने एक नॉर्मल और सिंपल स्टोरी लिखनी है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. से कि आपका जो टॉप क्वालिटी है वो है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. आपको लगता है कि मेरे में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हाँ बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं. कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके PIQ में भी शो करेंगी. वहाँ पे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने काफ़ी कुछ लिखा होगा, स्कूल में कॉलेज में आपने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए होंगे. सिमिलरली सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी जब आपने टीचर्स वाला आंसर लिखा होगा और जब आपने सेल्फ ओपिनियन वाला आंसर लिखा होगा तो वहाँ पे भी ये शो करेगा कि आप में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है. ओके, सो आप यहाँ से थीम चूज कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी थीम्स हो सकती हैं फ्रॉम माई स्कूल लाइफ, फ्रॉम माई कॉलेज लाइफ, या फिर अगर आप वर्किंग हैं तो आपकी ऑफिस लाइफ से कौन सी ऐसी थीम है जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ दिख रही हैं. प्लीज़ राइट अबाउट दैट. तो ऐसे ही आपने क्या करना है, चूज टॉप 3 स्ट्रेंथ ऑफ योर्स. हर एक स्ट्रेंथ को सोच के आप 3-3 स्टोरीज लिखिए. इन दैट वेज यू विल हैव 9 आइडियाज़. अब इन 9 आइडियाज़ को आप दिमाग में रख के जाइए व्हेन यू आर गोइंग फॉर SSB. एंड अगर इन 9 आइडियाज़ में से कोई आइडिया पहले रिपीट नहीं हुआ है 11 पिक्चर्स में, यू कैन चूज दैट फॉर योर ब्लैंक पिक्चर. आई होप नाउ द ब्लैंक पिक्चर आइडिया इज़ वेरी क्लियर टू यू.
Thank you so much for watching the video. If you have any questions related to SSB preparation, you can ask us on the Instagram handle p3_talks. If the content of this video was helpful, please hit the subscribe button. Also do share it with your friends. Thank you so much.